types are given, but I'm not asking about the types. I'm just asking about this word, pure substances. Tell me what is pure substance, anyone? Pure substance are made in nature without any chemical bonding. Yes, without any chemical bonding. Okay. Um, recording. Yes, recording is on. Okay. So प्योर सब्सटेंसेस हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी उसमें और कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स नहीं होगा. जब हम बात करेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गोल्ड, देन all the elements in that substance will be of just gold, metal gold. See examples of pure substances, pure metal, distilled water. See यहाँ पे एक confusion हो सकता है कि when we talk about this, हाँ, when we talk about gold, are you able to just see whatever I am writing on the board? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay, very good. When I'm talking about gold, so only one thing is comes in our mind. What is this AU? Silver. No. This Gold, gold. this AG is silver. Symbol of gold. Symbol of gold. Gold. Symbol of gold. Gold. Okay. If I'm having, see, if I'm having this particular substance, for example, let it be the gold. Okay, we should color it also in the color of gold. Okay, so now what will happen? All the elements, see, just 1, 2, 3, whatever elements we have, every element will be of gold only. This is the example of pure substance. But now we will talk about water. What happens with water? You all know that water consists of, for example, the formula for water is H2O, very well known to all of you. It is composed of hydrogen and oxygen. If you talk about the atoms, then 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay. So is it the pure substance? Can we call it as a pure substance? Yes, sir. Yes. Why? Because in water, every molecule will be of water only. Water, yes. Nothing else. Okay. So we'll come to our topic now. Pure substance. We have pure metal. We have distilled water. See the word. This is very important. This word is very important. Not only water, it should be distilled water. Nothing is mixed in that water. Okay. So now one more thing. जब हम ये केमिस्ट्री लर्न करते हैं ना, तो जस्ट हम यहाँ पे डेफिनेशंस और वो सब लर्न नहीं करते हैं. What we talk about the concepts of these words. Okay. See, they always have the same properties regardless of their origin. Mixtures have no definite chemical composition and hence no definite properties. So ये compare करने के लिए, say pure substance have a definite chemical composition. लेकिन अगर हम mixtures की बात करेंगे, so they are mixed with some other compositions. Okay. Now pure substance, they are of 2 types. One is elements and the other is compounds. Very easily we can have that elements are of 3 different types. These are all basics. 9th and 10th, I think ये बहुत ही clear आपने study किया हुआ है. Yes, sir. So in a just recap mode, because we have to go to the main topic. So यहाँ पे pure substance are further divided into elements and compounds. Elements, what are elements? Elements are pure substances which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. Okay, जैसे for example अगर हम gold की बात करते हैं, तो gold को आप ब्रेक कर सकते हैं. जैसे एक सिंगल एटम अगर आपको मिलेगा गोल्ड का,
तो क्या आप उसको ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस में ब्रेक कर सकते हैं? No. Yes. एक मिनट, जिसने यस बोला, हाउ? Okay, it's okay. See, we are not in IIT classes, okay? We are just in our 11th, first chapter we are learning. So it's okay अगर आप कुछ बोलते हैं. If you don't have any reason, then also fine. But you must tell something. No. Okay. So, see, the elements cannot be broken into simpler substance. Means what? कि elements किससे बने होते हैं? Yes? आप सब आपको Atom. मालूम? हाँ, एटम्स के. और एटम्स किससे बने होते हैं? सिंपल है ना भाई, ये देख, ये आपका ऑर्बिट है. प्रोटॉन, Yes. न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. हाँ, yes, Electrons. yes, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. yes. Electrons. Very good. Now we have the nucleus. Nucleus consists of proton, positive charge, and neutron. न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? न्यूट्रल. न्यूट्रल होता Neutral. है. हाँ, Neutral. न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता. And outside the nucleus we have different orbits. Just for illustration, I am not drawing the proper diagram. I am just drawing electrons outside the nucleus and revolving around an orbit. Okay, and all these electrons are negatively charged particles. Okay. Yes. So by any simpler chemical process, can we break down these elements? No, we cannot break. No. we, No. हाँ, No, we we can't. cannot. इसीलिए that's why elements जो है, elements cannot be broken down into any simpler substances by any simple chemical process or chemical changes. So elements are further classified as metals and metalloids. So see, metals, non-metals and metalloids. Now it is very much clear that these are topics just for revision, okay? Nothing related to your exams and all these things. ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है आपका, और कुछ नहीं करना है आपको इसमें. सो जस्ट जल्दी से, आप सबको मालूम है मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? लस्टर होता है. लस्टर क्यों होता है? शाइनी अपीयरेंस. लस्टर क्यों होता है? Okay, see, you will just understand, because take an example of the metal. Let it be a metal. Which metal you want to study here? Let it be gold only, ना? अभी बहुत महंगा चल रहा है, तो थोड़ा गोल्ड के बारे में स्टडी करते हैं. गोल्ड में, ओके, ये मैं बना रहा हूँ क्या? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गोल्ड. एक्चुअली एटम बनाने चाहिए, बट एटम का यहाँ पे रोल नहीं है. यहाँ पे रोल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है. बट इलेक्ट्रॉन्स भी कौन सा? 10th का याद है कौन सा इलेक्ट्रॉन? आपको तुरंत याद आएगा. सी, जैसे मैं लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा. Electrons. Free Free electron. Do you remember this body? Free electron. Yes. Okay. Yes. Okay. How they are just connected to our syllabus? Free electrons क्या होते हैं? So the electrons which are revolving around the outermost orbit, Also. है ना? They are very much less attracted towards the nucleus because of the distance between the nucleus and the electrons. Okay, तो उनके साथ क्या होता है? They are, or they might be attracted by the nucleus of other atoms. Okay, so क्या होगा कि they will leave their parent atom like this. This is the electron, this is nucleus, the distance is just very much, okay. So this electron will leave this atom and it will become a free electron. Okay, अब क्या होता है यहाँ पे? We have sunlight. Okay, light energy. These electrons, these free electrons will absorb. What they will absorb? Light energy.
ओके। अब वो लाइट एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, वॉट एवर वी टेक वी हैव टू गिव इट बैक। ओके, यू यू आर जस्ट फैमिलियर विद द रूल कि जो कुछ भी हम लेंगे सब आफ्टर सम टाइम्स हमें क्या करना होता है, वो रिटर्न करना होता है। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती है और उसके बाद जब वो एनर्जी वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वो लाइट एनर्जी कहां से आता हुआ दिखता है आपको? सन। ओके, लेट मी क्लियर दिस। फिर से सुनना सब कुछ, हाँ, फिर से सुनना कि सनलाइट, सी आई एम द इलेक्ट्रॉन, आई सबको मैं दिखाई दे रहा हूं अभी? Yes, sir. Yes. ओके Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes. ओके ओके। सो जैसे ही मैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करूं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। क्या मैं ऐसे ही रहूंगा जिंदगी भर, ऐसे ऐसे रहूंगा क्या? No. नहीं नहीं ना? सर। No. आफ्टर समटाइम्स आई हैव टू बी नॉर्मल। बट जो मैं ये नॉर्मल हो रहा हूं, so what I have to do, I have to give it back. The energy, whatever energy I have taken from the sun, I have to give it back. So हाँ, so see, ये जो हाथ आप देख रहे हो ना, ये है सनलाइट। अब ये सनलाइट मैं ले रहा हूँ, ये मैं आपको लेते हुए तो नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये वापस दे रहा हूँ तो ये कौन देता हुआ दिखाई दे रहा है? सन देता हुआ दिखाई दे रहा है या मैं देता हुआ दिखाई दे रहा हूँ? आप आप देते हुए दिखाई दे रहे हो। आप देते हुए दिखाई दे रहे हो। हाँ, तो मैं दे रहा हूँ ऐसे। तो ये सनलाइट किसकी तरफ से आ रहा है? सन की तरफ से आ रहा है या मैं इलेक्ट्रॉन की तरफ से आ रहा है? Electron. इलेक्ट्रॉन की तरफ से आ रहे हैं। तरफ से इलेक्ट्रॉन। There are millions, trillions of electrons. ये आपको पता है। Just the piece, इतने से पीस में भी there might be millions and billions of electrons. तो सबके पास से थोड़ा थोड़ा लाइट अगर आ रहा है, ओके, तो इसका मतलब क्या है? वो कौन चमकता हुआ दिख रहा है आपको? हु इज शाइनिंग? मेटल Light. इज, मेटल। मेटल इज Metal. शाइनिंग, मेटल इज शाइनिंग। ओके, जो मेटल शाइन करता है, व्हाट इज द रीजन? हु इज द हीरो हियर? हु इज डूइंग द वर्क हियर? Metal. Electrons, electrons. इलेक्ट्रॉन। Electron. But which electrons? Free electrons. Free Electron. Electrons. ये याद रहेगा आपको Yes, sir. Yes, sir. क्या ये कॉन्सेप्ट? Okay. So the first point is clear. Why do metals have luster? Why they have shiny appearance? और अगर कभी मान लो डल हो जाता है ना सरफेस, जैसे सिल्वर है, सिल्वर को अगर आप ऐसे जस्ट एयर में ओपन रखोगे तो आफ्टर सम टाइम्स ब्लैकिश उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है। वो कोटिंग किस चीज की है? वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट कोटिंग, बट जैसे हम उसको साफ करते हैं, यू नो, पीताम्बरी एंड ऑल दैट पाउडर, Yes. Yes. जब हम उससे उसको क्लीन करते हैं, दे स्टार्ट शाइनिंग। Why they are shining? Because the electrons, free electrons absorb, free electrons absorb the sunlight and then they give it back. When they give it back, it seems that light is coming from the metal and they appear shiny. Okay? Now the second point, why metals conduct heat and electricity? Okay, let's see why they conduct heat and electricity. Again, obviously we'll have a piece of metal. ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको बराबर ना? Okay, let's change the color. Take a piece of metal, okay, and we'll draw some free electrons. अच्छा, ये जो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, ओके, जरूरी नहीं कि मैं पूरा बोर्ड भर दूं। इट्स ओके ना? यू अंडरस्टैंड ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके।
नाउ से हम बात कर रहे हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये दोनों को साथ में क्यों लेते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो कॉन्सेप्ट है कंडक्शन। पता है ना कंडक्शन क्या होता है? Yes, sir. From one part of the metal, okay, that heat and electricity will be conducted to all parts of the metal. So this concept is known as conduction. और यहाँ तक आके ये हीट हो जाता है, ठीक है ना? अब ये क्यों होता है, आखिर कौन करता है इसको? It very easy to understand. Who is our hero? Free electrons. electrons. Okay, how they do this action? Because heat or electricity, they are a form of energy. Okay, and when energy is absorbed by, for example, let's say this electron absorbs energy, and this energy will be just passed towards this other electron. This electron, see, this electron is passing the energy. Okay, they are the carriers of this energy, and in the form of waves or energy, the heat energy or electrical energy is just conducted from one part of the metal to the other part of the metal. So that's why metals are good conductor of heat and electricity. Yes. Okay. So again, free electrons का ही काम है यहाँ पे, can be drawn into wire. Why they can be drawn into wire? And what is that property called? अगर उनसे वायर बना सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं उसको? ओके, नहीं मालूम, डक्टिलिटी। यस, डक्टिलिटी। अगेन डक्टिलिटी के लिए क्या करते हैं? सी, एक काम करते हैं, हम जस्ट यहाँ पे एटम्स ही बनाते हैं। What I'm drawing atoms now. Okay. ज्यादा नहीं बनाते, नहीं तो। अच्छा, तुम लोग इसको लड्डू तो नहीं समझ रहे हो ना? No. उठा के खा मत लेना एक दो इसमें, बिकॉज मैं शेप वैसे ही दे रहा हूँ। ओके, सी, when pressure is applied, see, we are applying the pressure here. Okay, ये प्रेशर अप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप एक हैमर ले रहे हो और वो हैमर से उसको आप ऐसे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। या फिर आप क्या कर रहे हैं, एक मशीन में वायर को ऐसे रखा और आप उसको खींच रहे हो। सो व्हेन यू आर पुलिंग अपार्ट, सो व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये मैंने जो बनाया है पिक्चर में, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं दिखाया नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, चाहे आप दिखाओ चाहे मत दिखाओ, ये अंदर ही अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, एक ऐसा होता है ना कि मतलब गैप रहता है बहुत सारा, देयर आर मेनी गैप्स बिटवीन द एटम्स। और जैसे आप वो खींचते हो, जब आप ये फोर्स अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, वो गैप है ना, ये एक के ऊपर एक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है, और मेटल है, सॉरी मेटल बोला मैंने, एटम्स है, वो एटम से खींचते हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज वन एटम एंड दिस इज अनदर एटम, दे आर जस्ट ओवरलैपिंग ईच अदर। बट मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसको, आई एम जस्ट पुलिंग इट। व्हेन आई एम पुलिंग इट, व्हाट हैपेंस, दे आर जस्ट हैविंग द शेप, और इस तरह से वो वायर को आप ऐसे खींच सकते हो, ओनली बिकॉज ऑफ, यस, यू से द वर्ड नाउ, Free electrons. Electrons. okay. Now can be hammered, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। See, the ductility and malleability are almost same property. While in ductility we just pull the metal and we draw into a wire, and but in malleability what we do, we just hammer it, okay, and we just make a sheet out of that metal. You know how thin we can make this sheet? Yes. Foil paper. Foil paper. Okay, very good, foil paper. So
सो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि मेटल्स में क्यों इतनी सारी प्रॉपर्टीज मुझसे है. ऐसे ही होना चाहिए. लिसन टू द लेक्चर. ओके, मेटल्स में क्यों इतनी सारी प्रॉपर्टीज है? ओनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दे हैव लस्टर, they are good conductor of heat and electricity, they can be drawn into wire, they can be hammered into thin sheets. अच्छा, शीट्स तो आपने देखे हैं ना, वो सिल्वर फॉइल और गोल्ड फॉइल भी अभी आते हैं, बराबर है. Yes. बट वो गोल्ड, हाँ, बट वो गोल्ड फॉइल को कितना थीन आप कर सकते हो? क्या आप इतना थीन कर सकते हैं कि आप आर पार देख सकते हैं उसके? Yes. 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 ये कहाँ यूज हुआ था? ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इसको यूज किया था, इस शीट को. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वहां पे ये शीट यूज हुआ था. और जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है कि कितना थीन वायर बना सकते हो, क्या इतना थीन बना सकते हैं कि उसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा या फिर किसी नॉर्मल आई से दिखेगा भी नहीं वो? No, कैन sir. वी ड्रॉ? No. Yes. Okay. Yes, we can, but they are very just costly process. बट हम बना सकते हैं. लेकिन किसका बना सकते हैं? कॉपर का बना सकते हैं, आयरन का बना सकते हैं क्या? नो, गोल्ड का बना सकते हैं. Okay. Why gold is precious? Because it has many properties. So gold, silver, copper, iron. Mercury is a liquid metal at room temperature. यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दिया नहीं है. Generally metals are solid at room temperature, but mercury, in spite of being a metal, it is liquid at room temperature. Okay. And non-metals में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा रिकैप करने के लिए, because whatever property metal has, non-metal is just opposite of metal, so they don't have luster. लेकिन डायमंड और आयोडीन, डायमंड क्यों? डायमंड नॉन मेटल है. डायमंड क्या है? क्या कंपोजिशन है डायमंड का? कौन सा एलिमेंट है? ओके, कार्बन. कार्बन. हाँ, कार्बन है. डायमंड एक्चुअली क्या है? कार्बन है. बट द एटम्स ऑफ कार्बन, ओके, आर अरेंज्ड इन सच अ पैटर्न, ओके, सो डायमंड जो है वो चमकता है, उसमें शाइन होता है. आयोडीन जो है वो भी शाइन करता है. And non-metals are poor conductors of heat and electricity because no free electrons are there in non-metals, so they cannot conduct heat and electricity. But exception is graphite. Again, graphite क्या है? कार्बन. Carbon. Okay, so you can understand why carbon is so important in our nature. Okay, it cannot be hammered because they are brittle. Brittle word पता है ना? Brittle क्या होता है? It will look like solid. It will look like solid, but when you hammer it or just when you press it or just pressurize it, it will break down into pieces. So that property is called brittle. An example है iodine, nitrogen, carbon, etc. They can be solid, liquid or gas. Mainly gas and solid. And then comes metalloids. Metalloids आज के जनरेशन में, आज के जो भी आपका इंडस्ट्रियल है प्रोग्रेस, वो किसकी वजह से हो रहा है ज्यादा? मेटलॉइड्स. जो भी चिप्स बनते हैं, ओके, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, पता है ना आपको? सम एलिमेंट्स, हाँ, सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जनरली वो नॉन मेटल के जैसा बिहेव करेंगे, बट जब आप उसका टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप चेंज करोगे, तो किसके जैसा बिहेव करेंगे? मेटल्स के जैसे बिहेव करेंगे. So that's why they are called as metalloids. Examples: arsenic, silicon and germanium, in which silicon is the hero. It is widely used. अच्छा, silicon actually किस में मिलता है? हाँ, चिप में मिलता है. लेकिन सिलिकॉन हमें नेचर में कहाँ से मिलता है? सिलिकॉन का एक कंपाउंड बता दो मेरे को. सिलिका पता आपको? सैंड. अच्छा, रेत मालूम है? रेत जिसे घर बनाते हैं, सैंड जिसको बोलते हैं. ओके, वो सैंड क्या कंपोजिशन होता है? उसमें सिलिकॉन होता है. एंड वो सैंड से सिलिकॉन, एंड फ्रॉम दैट सिलिकॉन वी हैव so many chips, okay, conductors or semiconductors. Now comes compounds. Compounds are pure substances which can be broken down into simpler substances by ordinary chemical change. यहाँ ध्यान देना, ordinary chemical changes बोला है. Compounds are the pure substances
which can be broken. Elements तो pure substance है, but we cannot break the constituents of an element by any simpler or ordinary chemical changes. But compounds, being pure substance, they can be broken down into simpler substances. In a compound, 2 or 3 elements are combined in a fixed proportion. So what is this fixed proportion? Compounds. Now we'll talk about water only. Composition of water is H2. ये तो आपको पता ही. But ये जरा मुझे बताओ, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. When these are combined, water is formed. सर आप म्यूट पे चले गए. बताइए. H2O2 means what? Hydrogen peroxide, है ना? हाँ सर. यस. आप लोग सुन रहे हैं, मुझे होती है. That means the composition is fixed. Okay, अगर 3 ऑक्सीजन आ गया, so that third oxygen will be accepted in that compound? नो. No. No. No, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा. तो H2O जब बन रहा होता है, okay, H2O जब बन रहा होता है, तो वहां पे अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन या एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया, सो वो उस फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेगा. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी कंपाउंड को अगर आप स्टडी करते हो, तो उसमें जो भी कंपोजिशन है, दैट कंपोजिशन इज फिक्स्ड. ओके, चाहे H2O बोलो, चाहे HCl बोलो, वॉट एवर यू टॉक. सो the compounds, यहाँ पे compounds are the pure substances which can be broken down into simple substances by ordinary chemical changes. Okay. Now see, यहाँ पे थर्ड जो टाइप दिया है वो है मिक्सचर. Mixture contains 2 or more substances in no fixed proportions and may be separated by physical methods. ये नॉर्मल है. मिक्सचर्स में क्या हो रहा है कि आप एक्स्ट्रा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप दे रहे हो उसमें एक्स्ट्रा, जैसे नॉर्मली मिक्सचर का एग्जांपल क्या होता है, उसका टाइप्स छोड़ दो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नहीं बोल रहा हूँ. मिक्सचर क्या हो सकता है, जैसे शरबत, जब हम लोग कोई जूस बना रहे होते हैं तो शुगर उसमें कम या ज्यादा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, या फिर सॉल्ट किसी चीज में अगर हम डाल रहे हैं, so according to the taste we can just change it. The composition can be changed. There are no fixed composition in mixtures. And types of mixtures are, yes, बोलिए. One is होमोजेनियस. होमोजेनियस. हेट्रोजेनियस. हेट्रोजेनियस. now what is homogeneous? अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है और इस बीकर में आपने वाटर डाल दिया, एंड इन दैट वाटर
आपने मान लो उसके अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो सॉल्ट जो डिसॉल्व हुआ है ये ऐसे, क्या ये Homogeneous. क्या ये मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर है? Yes. 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, Yes. और अच्छे से देखो। अच्छा सुनो, Heterogeneous है. हाँ आप इसको क्यों नहीं समझ पा रहे, मैं बताऊं आपको, क्योंकि अभी सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे आप सॉल्ट जो है एक जगह पे ज्यादा है और ये वाले पार्ट में सॉल्ट है ही नहीं। सो अगर आप ये वाला वाटर चेक करोगे, टेस्ट करोगे, तो आपको सॉल्टी नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला वाटर टेस्ट करोगे तो सॉल्टी लगेगा, और यहाँ का वाटर अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सॉल्टी लगेगा। ठीक है, तो सर ये, हाँ बोलो। डिसॉल्व होने के बाद होमोजेनियस हो जाएगा ना? हाँ यस यस यस। तो अब इसको हम डिसॉल्व कर देते हैं। जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सो दैट मीन्स एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन will have same composition of the whole solution. Okay? अब ये जो है होमोजेनियस हो गया। और जब हेट्रोजेनियस की बात आती है तो ऑब्वियसली हेट्रोजेनियस में क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व नहीं होगा, या अगर डिसॉल्व होगा भी तो वी कैन सी, हाँ पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, और वहाँ पे मिक्सचर जो है वो सेम कंपोजिशन में नहीं होगा फॉर द होल पार्ट, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, इस तरह से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वहाँ पे। सर, हाँ बोलो। ज्यादा अमाउंट का सॉल्ट डाल दिया, अगर वो डिसॉल्व नहीं हुआ तो वो हेटेरोजेनियस में आ जाएगा ना? नहीं नहीं, हेट्रोजेनियस में नहीं आएगा। देखो Salt dissolve एक्चुअली हो क्या जाएगा। होता है ना, हाँ सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा ना? सर क्योंकि और मतलब एक फिक्स, जैसे कि 1 लीटर वाटर में हम फिक्स हाँ अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल सकते हैं, हाँ हाँ उससे हाँ ज्यादा डाला तो हाँ, फिर तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि वो ओके तो फिर वो ओके हेटेरोजेनस होना चाहिए। okay 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 according to the concept of homogeneous and heterogeneous mixtures, homogeneous का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी पार्ट से, पार्ट समझ रहे हैं ना, सब मतलब आपके सामने बीकर है, अभी आपके सामने बीकर है, और आपने क्या किया, उसमें आपने वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व किया है, लेकिन वाटर की अपनी एक कैपेसिटी है कि वो कितना अमाउंट सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, यही आप बोल रहे हैं ना? तो Yes, जब sir. हाँ, जब आप एक्स्ट्रा मोर देन द कैपेसिटी ऑफ वाटर, जब आप उसमें सॉल्ट आप मिक्स करोगे, तो ऐसा होगा क्या कि ऊपर सॉल्ट अलग रहेगा और नीचे के मिक्सचर में सॉल्ट अलग रहेगा। वो वाटर सबको कवर तो करेगा ना पूरा, वो Yes. सॉल्ट गीला तो हो जाएगा ना, एकदम सो लिक्विफाई हो जाएगा ना सॉल्ट पूरा। Yes. ओके, अब मान लो आप और उसमें सॉल्ट आप मिला देते हो, और सॉल्ट मिल रहा है ना, अब आप उसमें शुगर भी मिला दो, सॉल्ट भी मिला दिया, शुगर भी मिला दिया, और चाहिए तो उसमें सैंड भी मिला दो, लेकिन उसको ऐसे मिक्स करो कि मैं अगर फॉर एग्जांपल सपोज, हाँ सर हाँ लेट मी कंप्लीट जैसे ये बीकर है, मैं अगर ये पार्ट से, सी आई एम जस्ट टेकिंग आउट सम प्रोपोर्शन, मैंने ये प्रोपोर्शन बाहर निकाला उसमें से, और इसको अगर मैं देखता हूं तो इसमें मुझे सॉल्ट भी दिख रहा है, सी सॉल्ट भी दिख रहा है मुझे, इसके अंदर शुगर भी दिख रहा है मुझे, इसके अंदर सैंड भी दिख रहा है, तीनों दिख रहा है मुझे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। आपको मैं क्लियर करता हूँ, और कुछ अभी बोल रहा था, कोई बोले? मैं वही बोल रहा था। हाँ, कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि ये जब हम बात करते हैं एक सॉल्यूशन की, ओके, अच्छा इसमें एक मिनट रुको, सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं ना, तो ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। Solvent. ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंक्रीट का। यू नो व्हाट इज कंक्रीट? Mixture of sand, water and cement. सैंड प्लस सीमेंट प्लस Water. वाटर। तो क्या हम कंक्रीट का सॉल्यूशन ऐसा बनाते हैं कि वाटर बहुत ज्यादा होता है और सैंड और सीमेंट उसके अंदर पूरा डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा कंक्रीट बनाते हैं हम? नहीं, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सैंड ज्यादा होता है और सीमेंट उसमें हम क्या करते हैं, पहले सीमेंट को Mix मिक्स करते करके पूरा, वो मशीन आती है देखो बड़ी सी,
अपने Yes, घर sir. में तो मशीन Yes. यूज नहीं करेंगे ना, लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है टावर का, रोलर। हाँ रोलर में उसको डाल के ऐसा घुमाते हैं ऐसे पूरा, और घुमाने के बाद उसमें वाटर डालते हैं और फिर उसके बाद उसको मिक्स करते हैं, और फिर हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा? Homogeneous. होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा। दूसरा एग्जांपल आपको समझ लो, जो इंसेंस स्टिक आता है जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, जब हम ओके जब हम उसको लाइट करते हैं और वो स्टिक जलता है तो उसके जो फ्यूम्स होते हैं, जो फ्यूम्स आपको निकल रहे हैं जहां से, तो वो कैसा है कि एयर बहुत ज्यादा है और वो फ्यूम्स उसके अंदर आपको दिख रहे। एयर ये पूरा रूम है, लेकिन ये इंसेंस स्टिक है और उसके अंदर से फ्यूम यहाँ से निकल रहा है। तो अगर मैं पूरे रूम को मैं सोल्यूट कंसिडर करूं और ये जो फ्यूम्स निकल रहा है इसको, सॉरी, पूरे रूम का जो एयर है उसको सॉल्वेंट कंसिडर करूं और ये जो फ्यूम्स निकल रहा है उसको सोल्यूट कंसिडर करूं, तो ये होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाई? बिकॉज इन सम पार्ट्स सोल्यूट ज्यादा है एंड इन अदर पार्ट्स सोल्यूट कम है। बट आफ्टर सम टाइम जब वो इंसेंस स्टिक पूरा जल जाता है, पूरा खत्म हो जाता है और वो फ्यूम्स जो है वो पूरे, वो परफ्यूम जो पूरे रूम में फैल जाता है, अब उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस। Homogeneous. 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 Okay, now I think homogeneous and heterogeneous word is clear to all of you, because आप कभी ये नहीं समझना कि homogeneous का मतलब है कि कुछ डिसॉल्व हो जाता है। homogeneous का मतलब है कि सब आपस में मिक्स हो गया। ऑब्वियसली जहाँ डिसॉल्व होना है वहां पे डिसॉल्व होगा, लेकिन जहाँ पे मिक्स होना है वहां पे तो मिक्स होगा। और उसके बाद क्या होगा? इन एवरी पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट you will have the fixed composition of all the constituents of that mixture. आपने सुना था कि मिक्सचर में कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। ये मतलब क्या? मैं इसको कॉन्ट्रेडिक्टरी कर रहा हूं अभी क्या अपने स्टेटमेंट को? नहीं, मैं कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं कर रहा हूं। सी व्हाट आई एम सेइंग कि इन मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, बट इन होमोजेनियस मिक्सचर इन एवरी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन the composition of solute with the solvent is same. And in heterogeneous में क्या होता है कि वो composition जो है वो same नहीं होता। in some part it will be more, in some part it will be less. अब यहाँ देखिए बुक में क्या दिया है तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। Mixtures are further homogeneous and heterogeneous. Solutions are homogeneous mixtures. See, solutions are homogeneous mixtures because the molecules of constituent solute and solvent are uniformly mixed throughout its bulk. यानी पूरे solution पे ये uniformly mix होता है. In heterogeneous mixture, the molecules of the constituents are not uniformly mixed. For example, suspension of an insoluble solid in a liquid. Insoluble solid in a liquid बोला है, याद रखना। जैसे कि वो कोई एक मेडिसिन आती है देखो, जिसके अंदर वो पाउडर होता है और आप उसको ल्यूकवार्म वाटर डाल के उसको मिक्स करते हैं, फिर वो बॉटल को आप ऐसे शेक करते हो और जो वो शेक करने के बाद उसके अंदर थोड़े थोड़े बबल्स दिखते हैं पूरा। आपने देखा है नॉर्मली वो अपना चिल्ड्रन के लिए होता है, बच्चे लोगों का जो मेडिसिन आता है ना उसमें ज्यादा वो Yes, sir. उसी फॉर्म में रहता है। या फिर वो जेली होती है देखो, ये क्या बोलते हैं, वो जो फेस वॉश होता है, हिमालय फेस वॉश या फिर एवर यूथ फेस वॉश, उसके अंदर वो डॉट्स दिखते हैं ना थोड़े थोड़े, वो होता है सस्पेंशन। हाँ, वो होता है सस्पेंशन एंड दैट मिक्सचर इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, Yes, sir. now we will Yes, take sir. a break because we have completed one topic. 2 minutes break है. In that break you will tell me if you have any doubts जो भी अभी तक पढ़ा है। Any word, any terms which is not clear to you till now? Okay, we will revise it. Sir, हाँ बोलिए। arsenic means? आर्सेनिक बेटा एक एलिमेंट होता है, जैसे आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। पीरियोडिक टेबल देखा है आपने? हाँ। हाँ, तो पीरियोडिक टेबल में वो एक एलिमेंट है जो आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन के ही रेंज में मिलेगा, बिकॉज वो क्या है, मेटालॉइड है। अच्छा, थैंक यू। ओके, नाउ व्हाट एवर यू हैव स्टडीड, यहाँ पे आपने सब्सटेंस देखा था। ओके,
अपना पीडीएफ में ही देख लेते हैं सब्सटेंस। मैटर, मैटर में आपने प्योर सब्सटेंस देखा है, मिक्सचर देखा है। सो मैटर, matter is of two types. Okay, one is pure substance, one is pure substance and the other is mixture. Mixture. सर कैमरा गिर गया। और मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? No, sir. तो सर फैन दिख रहा है। ओके, आप दिखेगा, एक मिनट। Okay, so I was actually trying to mount the camera on the tripod, but वो tripod में कभी वो क्या बोलते हैं उसका कैमरा का वो था ही नहीं, तो मैंने उसको पेस्ट किया हुआ था। लकीली वो इस पे गिरा टेबल पे। ओके, सो प्योर सब्सटेंस आ गया एंड देन मिक्सचर आ गया। सर And- माइक्रोस्कोपिक, आ, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। सॉरी माइक्रो नहीं, मैक्रो मैक्रो। ऐसा तो देख, दो वर्ड आ गया, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो मीन्स विच कैन बी सीन बाय नेकेड आई, और माइक्रो मीन्स इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। इज इट क्लियर? यस। ओके, पक्का ये एक साइंस वाला ही पूछा ना आपने, कॉमर्स वाला नहीं पूछा है ना? नहीं साइंस वाला पूछा। बिकॉज कॉमर्स में अलग है ये। तो ओके, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, और उसके बाद आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। So pure substances are classified into elements and compounds. Compound. Again, elements are classified into metals, Non-metals. Metalloids. Metalloids. non-metals, Metalloids. and metalloids. मेटलर्जी। अरे क्या कर रही है? मेटलॉइड से बेटा, मेटलर्जी नहीं है। अच्छा, व्हाट इज मेटलर्जी देन? सर वो टॉपिक था ना। हाँ, वो फ्लो में निकल गया वो। यस सर। है ना? हाँ। कंपाउंड्स में क्या है? सिंपल है कंपाउंड। होमोजेनियस। अरे बेटा वो तो मिक्सचर में है। Mixture में होमोजेनियस, इसलिए मैंने इसको रिवाइज किया। यू अंडरस्टूड? मैंने वो टॉपिक क्यों अभी स्टॉप किया है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजेनियस। Heterogeneous. वेरी गुड। ओके, प्रीटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने क्या स्टडी किया था उसमें? यहाँ पे हमने देख लिया था प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, दोनों के बीच में हमारा जो कंपैरिजन था प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर का, वो हमने देख लिया था। प्योर सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं, बहुत ही एकदम क्लियर है कि उसमें एलिमेंट्स होंगे और एलिमेंट्स को हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते बाय एनी सिंपल प्रोसेस। अच्छा, ब्रेक कर ही नहीं सकते क्या हम लोग? नहीं ऐसा कर सकते No, पर sir. जैसे कर जैसे सकते। एटम, हाँ एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है, यस प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन से। दीज आर द बेसिक जो सबको मालूम है, इसलिए यही पढ़ते हैं लोग। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट इज पॉसिबल to extract all these particles, okay, from an atom, but ये हम किसी भी simple chemical process से नहीं कर सकते। We have to apply nuclear force, okay? क्या सर वापस बोलो। न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर एनर्जी। फिर वो कॉस्टली भी होता है ना? बहुत ज्यादा। ओके, वो लैब वगैरह में, और जो नॉर्मल लैब में नहीं होता है, एडवांस जो लैब्स होते हैं उसमें होता है। लैब्स मीन्स नॉट द कॉलेज लैब, हाँ, ये प्लीज ध्यान देना।
Yes. नहीं तो फिर कॉलेज में जाके इंक्वायरी करने लगो कि हमको एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें अभी, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम है और है, तो उसमें हम लोग थोड़ा एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या दिया यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको ये पता है स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और एक स्टेट ऑफ मैटर होता है, पता है आपको? प्लाज्मा सुना है? Yes. हाँ, तो प्लाज्मा Yes. टीवी, हाँ प्लाज्मा टीवी का प्लाज्मा सुना है, या फिर स्टेट होता है एक प्लाज्मा, वो भी सेट है? होता है। हाँ ठीक है, चलो तो यहाँ पे हाँ इसको भी रिवाइज कर लो जल्दी से। इन सॉलिड्स constituent atoms or molecules are tightly held in perfect order, and therefore solids possess definite shape and volume. So when we talk about solid, atoms जो होंगे इसके वो एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे, देयर इज नो गैप, ओके। और जब आपको कोई बोलेगा, whenever somebody ask you, क्या इसके अंदर कुछ और फिट हो सकता है क्या, इतना गैप है उसमें, तो बोलना यस देयर इज गैप इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिटेड इफ इट इज अ मेटल, और अगर नॉन मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नहीं है। हाँ, सो दीज आर ऑल मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में एक चीज आपको पता है कि जो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, एक मिनट यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, वेट आई एम डूइंग सम सेटिंग्स। ओके, देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और उसके बाद होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, सॉलिड में ये डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? बहुत कम। बहुत कम बहुत होता है। कम, बहुत बहुत कम, यस बहुत कम होता है, बराबर। ओके ठीक, और बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है, तो ये जो अट्रैक्शन है, एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, ओके, विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सिर्फ यही एक फोर्स नहीं होता, वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर, इसके अलावा और कौन सा रोल प्ले होता है? एक होता है टेम्परेचर का, एंड द अदर इज प्रेशर। वन इज टेम्परेचर एंड द अदर इज प्रेशर। ये में हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, एंड आफ्टर सॉलिड कम्स लिक्विड। सेम वही रहेगा अगर तो, लेकिन लिक्विड में क्या होगा, यू नो इट, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस थोड़ा रहेगा। मॉलिक्यूल का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा बीच में, और जिसकी वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल इंक्रीज and intermolecular force of attraction will decrease. And when we talk about the gas, molecules में distance बहुत ज़्यादा, yes, so intermolecular distance is बहुत मतलब increase to the most, and intermolecular force of attraction is least. तो कंपेयर, whenever you want to compare, आप ये तीनों स्टेट में कंपेयर कर सकते हैं,
In solids, constituent atoms or molecules are tightly held in perfect order, and therefore solids possess definite shape and volume. अच्छा, डेफिनेट शेप इन वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उसका एक फिक्स्ड शेप होगा और वो Volume. जितना स्पेस वो कवर करता है वो उतना स्पेस पूरा वो कवर करेगा, वो एक्स्ट्रा स्पेस इधर का या उधर का कवर नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल दिस पेन विल टेक दिस मच ऑफ स्पेस, ओके, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो. ओके, liquid contains particles close to each other and they can move around within the liquid, while in gases the particles are far apart as compared to those in liquid and solid state. बस इसके बाद क्या है, 3 states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. ओके, सो अगर प्रेशर को आप साइड कर दो, टेम्परेचर की अगर बात करो, और हम यहाँ पर हैं अभी, ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ आइस है. अब आइस को अगर आप हीट करते हो, ओके, मैं जस्ट यहाँ पे एरो को चेंज कर रहा हूँ, ये एरो बना रहा हूँ मैं, सिंगल होगा. सो आइस से क्या होगा, वो ऑब्वियस है, मुझे पूछना नहीं चाहिए आपको. वाटर, एंड वाटर को अगर आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, वो Water vapor. Gaseous. वाटर Yes. वेपर या गैस. ओके, और जब आप ये हीट उसमें डिक्रीज करोगे वेपर में तो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, और जब वाटर में से हीट डिक्रीज करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा आइस यानी सॉलिड. सो वी हैव सॉलिड, वी हैव लिक्विड Gas. Yes. And gases. and we have gas. Okay. So, एक चीज यहाँ पे है, ये तो टेम्परेचर का सबको पता है, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रेशर का. क्या हम प्रेशर देके किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का या मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं? Yes. Yes. एग्जाम्पल, इट्स ओके, एग्जाम्पल देना मेरा काम है. आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल. यू हैव हर्ड अबाउट दिस. LPG. Yes. व्हाट इज द फुल फॉर्म? Liquid, लिक्विफाइड Petroleum gas. petroleum, gas. एक्चुअली जो सिलेंडर होता है घर में, उसमें होता क्या है, गैस होता है या लिक्विड होता है? Liquefied petroleum. हाँ, ये सही आंसर था कि सर उसके अंदर लिक्विड होता है ना गैस होता है. उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, बट वो कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है. ध्यान देना, सिलेंडर में से निकलता क्या है? गैस, बट सिलेंडर में होता क्या है? लिक्विड. Liquid. और जब हम वहां पे नॉब रिलीज करते हैं ना, गैस का नॉब ऐसे रिलीज करते हो, तो अंदर से क्या डिक्रीज होता है? एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, और अंदर जो लिक्विड है वो अपना स्टेट चेंज करता है और गैस में कन्वर्ट होता है, एंड दैट गैस कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर टू द गैस स्टोव. सर डीओ में भी ऐसे ही होता है ना? हाँ, डीओ में भी ऐसे ही होता है. डीओ में लिक्विड होता है, और इसका बेस्ट, हाँ, मिरिंडा में भी होता है ना? तेरे को पीना है? मिरिंडा, फंटा. तो थोड़ा ना गैस उड़ जाता है. एक मिनट, लेट मी क्लियर हो, लेट मी एग्जांपल दे रहा हूँ. सोडा. वेरी गुड. सोडा भी वो पूरा लिक्विड है. वेट, लेट मी फिनिश इट. जो आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं ना, तो सॉफ्ट ड्रिंक में पूरी तरह से वो लिक्विड है, वो गैस नहीं है. बट जो आप जब वो क्या बोलते हैं उसका ओपन करते हैं जब उसको, तो उसमें से जो गैस निकलता है वो उस मिरिंडा का या कोल्ड ड्रिंक का गैस नहीं होता. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व किया होता है, विथ प्रेशर डिसॉल्व करते हैं. आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट प्रीटी मच डिसॉल्व इन वाटर. ओके, वॉइस बहुत लो है. अभी आ रहा है बराबर? Yes, sir. ओके, आई एम टॉकिंग. जो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हो, जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें जो गैस आता है, डोंट गेट कंफ्यूज कि वो गैस प्रेशर से आया है, नहीं, वो ऑलरेडी गैस ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है,
बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वो उतना ज्यादा डिजॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से जैसे ही आप वो कैप ओपन करते हो वो पूरा गैस एक साथ बाहर आता है। दैट इज अनदर थिंग, उसको साइड कर दो। टेक एग्जांपल ऑफ लाइटर, सिगरेट लाइटर जो होता है, जो ऑर्डिनरी आई थिंक 10 या 20 रुपीज का शायद मिलता होगा, ओके, लोकल मिलता है, पता है ना आप लोगों को? यस Yes. वो ट्रांसपेरेंट होता है, देखो पूरा प्लास्टिक, उसके अंदर आपको लिक्विड दिखता है। कभी Yes. आपने उसको तोड़ा है, ब्रेक किया है कभी? Yes. नो पूरा धुआं निकलता है। हाँ, मैंने तो उसको ब्रेक किया है जब नॉर्मली मैं बचपन में, नॉट बचपन बट ठीक है। तो जैसे मैंने उसको ब्रेक किया या हम उसको ब्रेक करते हैं तो क्या होता है कि वो लिक्विड का कहीं पता ही नहीं गैस चलता। निकलना चलता है। हाँ, पहले तो वो लिक्विड था, लेकिन जैसे ही हमने उसको ब्रेक किया वो प्रेशर रिलीज हो गया और वो सारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। सर आग लग गया फिर? अरे आग क्यों लगेगा पागल, सिर्फ वो अरे वो ऊपर अरे रे सुन, मैंने ऐसा कैसे तो आग जैसा लगा, ये लिक्विड है, जैसे ही प्रेशर रिलीज करेगा वो गैस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा बस। हाँ, अगर तू वहां पे ऐसे खड़ा है माचिस लेके तो ऑब्वियसली आग लगेगी। ओके, लेकिन बेस्ट Yes, sir. एग्जांपल, हाँ इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप अपने घर में देख सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर होता है, सिलेंडर में अब आपको मालूम है। अच्छा हाँ, ऐसा मत करना, घर पे जाके अपने Blast. किचन में वो सिलेंडर उठा के, हाँ बोलेगा ये देखो यहाँ पे ये क्या है, यू कैन सी व्हाट इज इट, ये आपको पता है Cockroach farm sanitizer? वाला, ये sorry. पागल है, ये सैनिटाइजर है, कॉकरोच वाला नहीं है। लेकिन इसको जब आप शेक करोगे तो अंदर ऑब्वियसली लिक्विड है, लेकिन जैसे ही मैं ये रिलीज करता हूँ इसके अंदर से गैस निकला। ओके, समझ गए आप ना? यस Yes, sir. Yes, sir. तो states of matter we have solid, liquid and gas. In Yes. solid the elements or the substance are closely packed, closely held together, okay, by intermolecular force of attraction. Intermolecular distance are less या फिर least बोल सकते हैं, but the intermolecular force of attraction is the most. That's why they have a definite shape and volume. But in liquid, intermolecular distance is weak, that means less. So intermolecular force of attraction is weak, and they don't have volume. They have volume, but they don't have shape. Okay? Liquid में shape नहीं होता, but volume होता है, और gas जो है उसमें shape भी नहीं होता और volume भी नहीं होता। जैसा कंटेनर होगा वो कंटेनर पूरा का पूरा वो फैल जाएगा गैस उसमें। ओके, और इसके बाद जो ये टेम्परेचर और प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, ये भी आई थिंक अभी आपको क्लियर है। Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. ओके, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ Yes, द sir. लेक्चर? 11:30 to 12:30 और 1? सर हो गया लेकिन 12:30 हो गया। 12:30. 12:30. You have been told na 12:30. Okay. Yes. So, any doubt regarding today's lecture? ना No, sir. हम उसको No. नेक्स्ट लेक्चर में cover